Okay, are you able to hear me? आवाज आ रही है? Okay, now okay, we had done what we have done so far. This second question we have done, complete information we have done. Why do market fail? Externalities, monopoly power, market power. Then we had done public goods. Then incomplete information we had done. Some have more knowledge. No. This, I think we had not done this. Externalities pending, है ना? So I think you have to start with question number 3. No? Am I correct? Okay. अभी आ रही है आवाज बराबर? Now explain the concept of externalities and how externalities lead to misallocation of resources. The cost and benefits of the goods and service are reflected in the price of goods. Isn't it? Cost and benefits. For a producer, price of the goods represent price is cost of producing goods and profits earned by the producer. So when you are selling a goods, तो selling price क्या होती है आपके लिए? Selling price होती है आपके लिए होती है मेरे खर्चा और मेरी प्रॉफिट, है ना? फॉर कंज्यूमर जो पैसा देता है तो सोचते हैं मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, इसको कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा. फॉर अ कंज्यूमर प्राइस रिप्रेजेंट्स benefits derived from the goods. So for both of them, producer price represents cost of producing plus profits, and for a consumer कि मुझे इसमें benefit satisfaction कितना मिलेगा. However, there are some costs and benefits which are not represented by the prices. अब इसमें कुछ कॉस्ट और बेनिफिट ऐसी होती है जो गिनी नहीं जाती है, लेकिन and benefits are called externalities. In other words, cost and benefit which are not accounted for in the market prices are called externalities. ये sentence लिख लेना कभी भी, because they are external to the market. For example, if electricity is produced by using coal, pollution cost in the atmosphere is a cost which is not considered by the producer while determining the cost of products. मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो लोग सोचते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये सब गिनते हैं लोग. पर लोग ये गिनते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है प्रोडक्शन से, वो हम कभी गिनते हैं नहीं गिनते. ओके, so we don't consider the cost which is incurred by the society while producing the goods. We count only our out of pocket cost, that is internal cost, but the cost which is borne by others, okay,
by the society in general is not taken into account. That is why it is called externalities. External है. Thus, sometimes actions of either consumer or producer result in cost or benefit that do not reflect the part of the market price. Such costs and benefits which are not accounted by the market are called externalities. Follow this? The unique feature of externality is that it is initiated and experienced through not through operation of price system but experienced outside the market. मतलब ये कॉस्ट किसको लगती है, कौन इसका अनुभव करता है, कौन इस कॉस्ट को झेलता है. इट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय द मार्केट. मार्केट में उसका नाम भी नहीं आता कि एक्सटर्नलिटीज क्या है. वो तो जो दूसरे लोग भुगतते हैं, जैसे अभी गैस लीक होता है. हाँ, तो गैस लीक से कितने लोग मर जाते हैं, अभी हैदराबाद में हुआ. So that producer will never count नो कि क्या कॉस्ट थी एक्सटर्नलिटीज की, इससे रिस्क कितना है पब्लिक को, वो हम नहीं गिनते हैं. ओके, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू एक्सटर्नल लीड्स टू मिसएलोकेशन. अभी एक्सटर्नलिटी से मिसएलोकेशन कैसे होता है? सिंस इट इज कॉस्ट incurred outside the price mechanism, it is not compensated for. Externalities are also referred as spillover effects, neighborhood effects, third party effects. ये अलग अलग नाम है ना. पानी ऐसे ज्यादा बहाते हैं ना, उसको स्पिल हो गया बोलते है ना, गिर गया, तो उसको एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं. ओके, देन और आउटसाइड इफेक्ट्स, मतलब outside effects as originator of externality imposes cost and benefits on others which are not responsible for initiating the act. Or outside effects as the originator of the externalities imposes cost and benefit on others, it is called outside effect. क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट दूसरों पे आता है. who are not responsible for initiating. जिसने काम शुरू नहीं किया उसके ऊपर आ रहा है. जैसे हम जोर जोर से अगर एरोबिक्स करते हैं हमारे घर पे, तो नीचे वाले जो फ्लैट होगा उसको आवाज आती है कि नहीं? तो उसके लिए वो एक्सटर्नलिटी होती है, बिकॉज उसको ऊपर कॉस्ट आती है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एक्ट. मतलब जो कर रहा है वो नहीं भर रहा है, करे कोई भरे कोई. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज में भी रेसिप्रोकल और यूनिडायरेक्शनल. पहले ये समझ में एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं. एनी डाउट इन दिस? व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज? इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए. एक्सटर्नलिटीज ये नहीं समझ में आया एक्सटर्नलिटीज क्या है? कॉस्ट which is taken by others, the cost and benefits which are not reflected in the price of the goods. Okay, Aditya, any doubt? I thought you have not followed. No. Since it occurs outside the price mechanism, अब है ना एक्सटर्नलिटी होती है रेसिप्रोकल एंड यूनिडायरेक्शनल. अभी पता नहीं मॉड्यूल में कोई एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, मशीन इज अ वर्कशॉप मेक्स नॉइज व्हिच डिस्टर्ब्स द नियर बाय बेकर. सिर्फ एक मशीन का हमारी फैक्ट्री है, हम मशीन चलाते हैं, तो क्या है कि मशीन का आवाज, बाजू में एक बेकरी है, वहां पे बेकरी में जाता है, आवाज आती है, टक 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 ऐसे आवाज आती है पूरा दिन. ओके, और बेकरी वाला जब बनाता है, कुछ बेक करता है, तो स्मोक उड़ता है और वो स्मोक फैक्ट्री में जाता है ना. इफ मशीन इन अ वर्कशॉप मेक्स नॉइज व्हिच डिस्टर्ब्स अ नियरबाय बेकर and the smoke generated in the nearby baker causes discomfort to the workers in the workshop, such externalities are what? Reciprocal. क्या है? एक्सटर्नल. रेसिप्रोकल मतलब दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं कि नहीं. मशीन वाला आवाज करके बेकरी वाले को परेशान करता है, बेकरी वाला धुआं डाल के मशीन वाले को परेशान करता है. तो ये हुआ रेसिप्रोकल एक्सटर्नलिटीज.
those who are initiating, those who are initiating, उन लोग बेयर नहीं करते हैं। आवाज मशीन हम चालू करते हैं, आवाज तू सहेगा। बेकरी हम चालू करेंगे, धुआं तू सहेगा। If a singer is singing a song which disturbs students who are studying, in this case it is what? Unidirectional externality ना, हाँ, कि भाई एक गाना गा रहा है तो दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अरे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये क्या हुआ? दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिडायरेक्शनल। बच्चे परेशान नहीं कर रहे सिंगर को, लेकिन सिंगर परेशान कर रहा है बच्चों को, तो ये है यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नलिटीज। नाउ बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, ये मैंने बताया भी था। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, देन नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव का एग्जांपल देना बहुत इजी होता है, फिर भी मैं चारों के एग्जांपल देता हूं। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज मींस प्रोडक्शन की वजह से कुछ दूसरों का नुकसान हो रहा है ना? दूसरों का नुकसान हो तभी तो है ना, नुकसान हो रहा है नेगेटिव, और एक्सटर्नलिटीज मतलब दूसरों का होना चाहिए, अपना नहीं होना चाहिए, है ना? जैसे मशीन की आवाज कर रहे हैं तो नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो it is what? It is the externalities which is, it's the externality which is known by others, कि नहीं? Positive production externality, positive production externality क्या है? Negative consumption externality, positive नेगेटिव के बहुत एग्जांपल दे सकते हैं, हम लीवरेज में डालते हैं। डॉक्टर होता है तो अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर होता है तो डॉक्टर वेस्ट जनरेट करता है बहुत सारा, लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, ओके, लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, तो वो वेस्ट जनरेशन होता है, हाँ, that waste generation is a externality, okay, अब वेस्ट सोसाइटी को डील करना पड़ता है ना। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज आर व्हाट? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज आर कुछ फायदा होगा। अभी आ रही आवाज बराबर? ओके, पॉजिटिव प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन की वजह से दूसरों को फायदा हो रहा है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्विस देता है, लेकिन वो स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी बहुत फायदा होता है कि नहीं? कि समाज में इतने डॉक्टर्स हैं, ओके, जैसे हमारी प्रोडक्शन की वजह से दूसरों को भी फायदा हो, मतलब खाली कस्टमर को नहीं, दूसरों को भी फायदा हो जाए, ओके। सो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज आर आल्सो देयर, विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग, सपोज तुम लोग एक प्लास्टिक में चीज कंज्यूम करते हो तो प्लास्टिक फेंक देते हो, तो प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करने में कितना समय लग जाता है, तो दैट हैज टू बी नोन बाय द सोसाइटी नाउ। कचरे वाले को कचरा उठाना पड़ता है, जैसे हम लोग रोज कितना कचरा निकलता है, गार्बेज निकलता है तो हम खा लेते हैं, और फिर गार्बेज निकलता है, फिर हम गार्बेज में जाके म्युनिसिपैलिटी को देते हैं, तो दैट कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय म्युनिसिपैलिटी। ऑफ कोर्स दे आर कलेक्टिंग टैक्सेस, बट अगर इसको हम खाली इंडिपेंडेंटली गिने, दैट हमारे कंजम्पशन से दूसरे को कितना नुकसान होता है ना? और अगर तुम लोग गाना चलाते हो जोर से तो दूसरे लोग को नॉइज पोल्यूशन होता है, तो दैट इज आल्सो व्हाट? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। फॉलो दिस, है ना? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, हमारे बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग, तो कस्टमर को तो बेनिफिट मिलता ही है, दैट इज नॉट एक्सटर्नलिटीज, बट अदर्स आर आल्सो गेटिंग बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक इनोकुलेशन, जैसे कोई सपोज कंटेजियस डिजीज है, उसके अगेंस्ट हमने इंजेक्शन लिया, है ना? सपोज कोई जॉन्डिस है या कोई मलेरिया है जो फैलता है, कोरोना नहीं है, कोरोना का इंजेक्शन नहीं है हमारे पास, ओके। तो अगर हम लोग ने ऐसा इंजेक्शन लिया कि उससे मुझे वो
इम्यूनिटी मिल जाएगी उसके अगेंस्ट. So if I get the immunity, then I won't be able to pass. I will not pass the disease to others. तो दूसरों को अपने आप बेनिफिट होगा. I will not pass on. दूसरा भी एग्जांपल मैंने दिया था तुम लोग को बहुत, लेकिन एग्जांपल लिख नहीं सकते हैं. जैसे कि से होता है ना, वो लाइसेंस लगाते हैं, बालों में जू हो जाती है, तो कितने लोग जू निकालने के लिए लाइसेंस वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जू मर जाती है तो उसको तो बेनिफिट हुआ ही, लेकिन उनके फ्रेंड्स जो स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, उनको भी बेनिफिट होता है कि उनको भी वो जू फैलती नहीं है. फॉलो दिस. So this is called positive externalities. Okay, follow this or no? हम डिस्कस करेंगे अभी था what is externalities and what are the types of externalities. And positive production externalities confers external benefit on the persons other than consumers. Okay. For example, a doctor performing complicated orthopedic operation may become an expert in complicated. ना देखो, positive production externalities. Okay, अभी example देखो. Now ये कौन सा example दिया मैंने? A positive production externalities confers external benefit on persons other than consumers. मतलब consumers के अलावा दूसरों को भी फायदा होगा. For example, a doctor performing a complicated orthopedic operation may become an expert in complicated operations, and the benefit of his experience may be used by other doctors to treat other patients. Now सुनो, suppose एक बहुत ही orthopedic हड्डी के मामला है, एक बहुत ही complicated case है, तो doctor is treating a patient, so patient will pay the money and patient is getting benefit. Now doctor is providing service, producing goods and services or producing services of treating a patient. अब क्या होगा कि पेशेंट को तो बेनिफिट हो गई, दैट इज वन पार्ट, दैट इज नॉट एक्सटर्नलिटी, बट दिस डॉक्टर विल गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस एंड दैट एक्सपीरियंस विल बी बेनिफिशियल टू अदर पेशेंट्स और नॉट, माइट बी टू अदर डॉक्टर्स एंड टू अदर पेशेंट्स अगेन. तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो क्या होगा. हाँ, जैसे अभी कोरोना वायरस में प्लाज्मा ट्रीटमेंट आया है ना, वी गॉट अ प्लाज्मा ट्रीटमेंट. तो सपोज प्लाज्मा ट्रीटमेंट किसने यूज किया, तो वो पेशेंट अच्छा हो गया या उसकी चांसेस बचने के ज्यादा हो गए. अब ये जो अगर थेरेपी है वो डॉक्टर को भी एक्सपीरियंस आया, तो डॉक्टर विल बिकॉज ही गॉट द बेनिफिट. ये ट्रांजैक्शन में पेशेंट को तो बेनिफिट मिला, उससे पैसे लिए गए, लेकिन दिस एक्सपीरियंस विल बी यूज्ड टू ट्रीट अदर पेशेंट्स, तो अदर्स विल आल्सो गेट बेनिफिट और नॉट. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. नो, पेशेंट को तो बेनिफिट मिला ही, लेकिन दूसरों को भी बेनिफिट मिला. A positive external production externality confers external benefits on the person other than consumers. Okay, so it is giving benefit to others than consumers. For example, a doctor performing complicated orthopedic operation may become an expert in complicated operations, and the benefits of his experience may be used by other doctors to treat other patients. Another example of positive is can be of beekeeper who locates beehives in the orange growing areas, enhancing the chances of greater production of oranges to increase pollination. ना सुनो, beehives होते हैं ना, ये मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन होता है कि नहीं. हाँ, तो वो लोग मधुमक्खी पालते, प्रोड्यूस करते हैं कि भाई हमको ये मधुमक्खी हमको हनी निकालने की, ओके, हनी का प्रोडक्शन करते हैं. तो उन लोग है ना एक ऑरेंज ग्रोइंग एरियाज में डालते हैं, क्या, जहाँ पे ऑरेंजेस होती है ना, उस एरिया में वो लोग उगाते हैं, ऑरेंजेस के झाड़ ज्यादा होते हैं. तो क्या होता है, वो बीज की वजह से देयर इज मोर पोल्यूशन बिटवीन द ऑरेंज ट्रीज. ऑरेंज का जो फ्रूट होता है उसमें पोल्यूशन ज्यादा पड़ा है तुम लोगों ने. हाँ, तो उससे ऑरेंज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा. Another example for positive production externality can be of beekeeper who locates beehives in the orange growing areas, enhancing the chances of greater orange production of orange to increase pollination. ये है कि नहीं तुम लोग ने, हाँ कि नहीं. तो ये पॉजिटिव समझा, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. दोनों एग्जांपल दीजिए, डॉक्टर का और उसका मधुमक्खी का हनी बनाने का, और साथ में
ऑरेंज बोनस में मिलती है। इज इट क्लियर? चार लोग को क्लियर हो गया, बाकी कितने लोग हैं? हाँ चलो आगे। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, consumption. Negative consumption externalities are extensively experienced by in our day-to-day. Negativity तो बहुत है, पॉजिटिविटी के लिए एग्जांपल लाना बहुत मुश्किल है। Say such negative consumption externalities are initiated in negative production नहीं किया हमने, अच्छा पॉजिटिव प्रोडक्शन किया, फिर नेगेटिव शायद ये नहीं किया, नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं किया हमने पॉजिटिव प्रोडक्शन कर दिया सीधा। As the name suggests, ये भी करते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन ना। As the name suggests, it is an adverse effect due to production process. An example of such externalities may be pollution caused by production process. ये तो simple example है बहुत। Pollution caused by production process may be cause health hazard for people in the nearby area. हो सकता है ना। Also, हाँ जैसे अभी आपको बता दूं, एट प्रेजेंट गो एंड सर्च ऑन नेट थोड़ी देर में आके क्लास के बाद, ये बहुत सारे लोगों को चेंबूर में माहौल करके एक एरिया वहां शिफ्ट किया गया अंडर एसआरए प्रोजेक्ट्स, या उनको कुछ टेम्पररी अकोमोडेशन दिया। टेम्पररी अकोमोडेशन 8-10 साल हो गए उसको टेम्पररी दिया हुआ है। ओके नाउ ये जो है ना pollution caused by production process, अगर माहौल पे फैक्ट्रियां है, रिफाइनरीज है, तो वहाँ पे पोल्यूशन की लाइफ, लोगों की लाइफ कम हो जाती है। पोल्यूशन कॉस्ड बाय प्रोडक्शन प्रोसेस, माहौल के एरिया में प्रोडक्शन कॉस्ट बाय होल प्रोसेस में कॉस्ट हेल्थ हजार्ड फॉर पीपल इन द नियरबाय एरियाज। ऑल्सो पीपल इन द नियरबाय एरियाज may be exposed to unknown risk. Example, Bhopal gas leak disaster. The firm does not account for such costs while determining the prices to be charged. There are no market in which such externalities cost reflect. There are no markets in which such external costs are reflected. So pollution caused by production process may cause health hazard to the people. Also, the people in nearby area may be exposed to unknown risk. कितने को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि क्या रिस्क है। व्हाट इज द रिस्क, हमको पता ही नहीं क्या रिस्क है। जैसे सेल फोन के टावर बिल्डिंगों में होते हैं, तो कुछ स्टडीज बोलती है कि जो पे वहां पे लोग रहते हैं आजू बाजू में, उनको बहुत रिस्क है। ओके ऑल्सो पीपल इन नियर बाय एरियाज आर एक्सपोज टू अननोन रिस्क। एग्जांपल भोपाल गैस लीक डिजास्टर, उनको पता भी नहीं था कि हमारे वहां पे यूनियन कार्बाइड का प्लांट है और हमारे को इतनी रिस्क है ना। 84-85 में हुआ था नहीं। The firm does not account such costs while determining the prices to be charged. There is no market in which such external costs are reflected in the price of the goods. Okay, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी मार्केट नहीं जो इन कॉस्ट को गिने। There is no market. So नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव के दो एग्जांपल ये डॉक्टर और बी हाइव्स है कि नहीं। नेगेटिव कंजम्पशन नेगेटिव बहुत है, सिगरेट पीते हैं धुआं उठता है ना, और प्लास्टिक का कुछ पैकेज लेते हैं तो फिर डिस्पोज ऑफ करने में प्रॉब्लम आता है। नेगेटिव कंजम्पशन आर एक्सटेंसिवली एक्सपीरियंस्ड बाय अस इन डे टू डे लाइफ। सच नेगेटिव कंजम्पशन एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड इन कंजम्पशन व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन अदर्स। Initiated in the consumption की वजह से होती है ना, करता कौन है और बचता कोई और है। बोलो जी, yes or no? Example, consumption of cigarettes in
public places causes passive smoking, exposing non-smokers to the risk of causing cancer. पता है अगर कोई सिगरेट स्मोक करता है तो जो धुआं उठता है उससे दूसरे लोगों को भी कैंसर हो सकता है। तो ये नेगेटिव वन, भाई हम तो सिगरेट कंज्यूम नहीं करते, फिर हम पे ऐसा क्यों? रिस्क, excessive consumption of alcohol causes impairment in efficiency to work and production as instance of negative consumption externalities, है ना? जो आदमी अल्कोहल ज्यादा पीता है तो वो बराबर काम नहीं कर पाता है और दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है ना उससे, तो ये नेगेटिव है। फिर प्लास्टिक का एग्जांपल दे सकते हो, कंज्यूमिंग गुड्स इन प्लास्टिक्स, है ना? फिर हम फेंक देते हैं, एक आइसक्रीम खाई फेंक दिया, फिर वो ग्लास की कहानी क्या होती है जरा सोचो, इस ग्लास प्लास्टिक के ग्लास में आइसक्रीम खाई, उस चम्मच की कहानी कब खत्म होगी बताओ? लकीली इन इंडिया 90% ऑफ द प्लास्टिक इज रिसाइकल्ड, तो वापस चम्मच बन के आ जाती है या किसी न किसी रूप में आती है। ओके, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। A positive consumption externalities is initiated by consumption and confers external benefits to others. हाँ, हमारे कंजम्पशन से दूसरों को फायदा, हमारे कंजम्पशन से दूसरों को नुकसान, ये नेगेटिव था। If people get immunized against contagious diseases, they would confer social benefit to others as well as by preventing others from getting infected. So अगर हम लोग इम्यूनाइज होते हैं कोई कंटेजियस डिजीज से, सपोज से एक ऐसा इंजेक्शन लिया जिससे हमको मलेरिया नहीं होगा, तो फिर हम दूसरे को मलेरिया भी पास ऑन नहीं करेंगे। There as to others and as well by preventing others from getting infected. आया समझ में? Negative externalities impose cost of society which are not reflected by the in the market price of the goods. Once negative externalities are recognized, we have two types of cost. Now, पहले यहाँ तक समझा ये चारों negative externalities क्या होती है, और पॉजिटिव प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन, ये चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई? Yes or no? ओके, अच्छी बात। पॉजिटिव कंजम्पशन ये हो गया, ये हो गया। अब है ना, वंस यू रिकॉग्नाइज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, मतलब क्या कि अगर हम कुछ एक्शन कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट तो है ही है, लेकिन दूसरे किसकी भी कॉस्ट है। सो वन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। We have two types of cost. एक तो प्राइवेट कॉस्ट और एक सोशल कॉस्ट, है ना? क्या होता है प्राइवेट कॉस्ट? तो जो कॉस्ट हम इंकर करते हैं अपनी जेब से, और सोशल कॉस्ट क्या होती है? जो समाज भुगतता है। प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कॉस्ट देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज व्हिच आर कॉस्ट ऑन द सोसाइटी, समाज पर जो बोझ, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट। तो अब हमको दोनों कॉस्ट कंसीडर करनी चाहिए। माइक्रो लेवल पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एट माइक्रो लेवल वी कंसीडर व्हाट? सी है प्रोडक्शन। ओके, डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन आर टेकन एट माइक्रो लेवल। ओके, तो क्या होगा इसका? तो उसमें तो आदमी खुद की कॉस्ट ही गिनेगा, he takes on account only his cost. Private costs are costs which are incurred by the producers. Apart from private costs, there are negative externalities which are cost to the society. Consider production of an article. Private cost will consist of cost of material, labor, power consumed in the production. क्या है ना cost sheet? और पढ़ा है ना cost sheet तुम लोग? वर्किंग कैपिटल में भी है ना ये कॉस्ट ओवरहेड का। However, pollution created by production process is externalities which is cost to the society. Therefore, social cost is equal to what? Private cost plus external cost. तो देखो ये cost of एक total cost होती है, social cost is total cost,
प्राइवेट कॉस्ट भी गिनने का उसमें, प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ओके, तो इसको लोग, जो सोसाइटी को कॉस्ट होती है उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है, और टोटल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट, जो मतलब प्रोड्यूसर बेयर करता है और जो समाज को होता है, इसको हम सोशल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं। Thus, when negative production externality exists, social cost is greater than private cost. Similarly, when negative consumption externality exists, social benefits are less than private benefits. मैं बताता हूँ क्या स्टोरी है इसकी। देखो यहाँ पे है ना, social cost means total cost that is equal to private cost plus cost incurred by the society. Now, when we consume, okay, so we get what? Private benefit minus what? Minus social cost, or say external cost due to negative consumption externalities. तो ये हो जाएगा समाज को क्या बेनिफिट है ना, फॉलो दिस, मतलब बेनिफिट में से यार समाज की हो, तो आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन समाज का क्या हो रहा है जरा देखो, तो बेनिफिट माइनस करो जो समाज की कॉस्ट होती है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, माइक्रो लेवल पे जब डिसाइड होता है तो हम सिर्फ प्राइवेट की बात करते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट ओनली दिस, है ना, और जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम खाली प्राइवेट कॉस्ट देखते हैं। When you produce, we consider only private cost, and when we buy a commodity, consume a commodity, we consume only what? We consider only private benefit. तो ये सब हम चीज गिनते नहीं कि दूसरे को क्या होता है। In short, we don't take into account negative production and negative consumption externalities. हम नेगेटिव कंजम्पशन और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं देते हैं, लेते हैं। आई बात समझ में? Now, how does externalities cause market? फर्स्ट है ना, तुम लोग को पता है अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, when cost is increasing, पहले कुछ बातें ना कर्व समझने के लिए, कुछ बातें जो बेसिक्स है, और मॉड्यूल में ऐसा अज्यूम किया है कि फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज सप्लाई कर्व, बताइए आपको, इट इज राइजिंग पार्ट ऑफ marginal cost curve gives supply curve। ये पॉइंट आपको पता है नहीं है ना? फिर if cost increases, है ना, cost increases, supply curve moves to the left। ये सब प्रिंसिपल्स है जो डायग्राम में समझ में पड़ते हैं। हाँ, ये सप्लाई कर्व moves to the left showing fall in supply। कॉस्ट बढ़ जाती है ना तो सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। मैं बताता हूँ, ये दोनों चीजें पहले एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज नेक्स्ट 5-6 डायग्राम है उसमें सब नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। See here,
ये हम लोग ने देखा है यहाँ पे, और ये होती है प्राइस। प्राइस दोनों होता है वाई एक्सिस पे। ओके, अब है ना परफेक्ट कंपटीशन को सपोज डायग्राम बनाना इजी होता है उसमें। परफेक्ट कंपटीशन में एक प्रोड्यूसर की क्या हालत होती है? प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर। क्यों? जो भी मार्केट डिमांड सप्लाई से तय होगा, तो ये हमने कई बार बनाया, कहो उसको हम लिख देते हैं क्या, ए आर इज इक्वल टू एम, है ना। अब है ना क्या होगा कि ये मार्जिनल कॉस्ट का होगा, ऐसे पहले नीचे आता है, फिर अभी को बनाना मुश्किल है, तुम्हें ऐसे ओके, ऐसे मार्जिनल कॉस्ट का होता है कि नहीं? ये कोई, हाँ ये थोड़ा कर्व होता है, ऐसा खाली ऐसा कर्व होता है बीच में, कुछ नहीं ऐसे होता है ना, पहले कम होता है फिर दिस इज विच कर्व। अच्छी तरह समझो, आगे सब डायग्राम इस पे भी ओके। और इको के पेपर वाले करेक्ट करते हैं तो डायग्राम से बहुत खुश होते हो, प्रसन्न होते हैं। अब है ना ये पॉइंट ले लेंगे हम, देखो पॉइंट भी आ गया। तो लॉकडाउन ने कितना सिखा लिया आपको। ये देखो किधर गया, ये पॉइंट से ए है, क्या है पॉइंट ए, बड़ा है ले। अच्छा अब है ना इधर इक्विलिब्रियम हुआ, एम सी इज इक्वल टू एम आर, इधर होता है कि नहीं? मैं कॉस्ट को नहीं बता रहा हूँ, एम सी इज इक्वल टू एम आर। अब है ना ये ओ, ये एम, बोलो दिस। अब है ना ये ओ एम इज द क्वांटिटी। अब सुनो ये सप्लाई कर्व कैसे है, मार्जिनल कॉस्ट इज सप्लाई कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अभी सपोज प्राइस कम हो जाती है, प्राइस ज्यादा करते हैं, ज्यादा करने में मजा, प्राइस ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ये प्राइस ए आर इजिकल टू एम आर यहाँ आ जाएगा, है ना। प्राइस पहले मैंने बताया नहीं, प्राइस बढ़ गई ना, ये सपोज ओपी था और ये ओपी है, ये आर है सपोज, और ये पी है। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, वेयर विल द इक्विलिब्रियम, बताओ बताओ फटाफट बताओ। ये यहाँ, उसको हम बोलेंगे बी। ओके, सो यहाँ पे होगा एम के बाद ये एन आ जाएगा ना। अब क्या बताओ, प्राइस ओपी थी तो क्वांटिटी थी, प्राइस वॉज, और जब प्राइस ओ एन हो गया
पी सॉरी प्राइस ओ आर हो गया, तो फिर तो ये जो अगर बढ़ाते जाएंगे ये और बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, तो ये सप्लाई कर्व भी हुआ ना यार, ओपी पे इतना इतना बनाऊंगा सप्लाई करूंगा और ओ आर पे इतना करूंगा, तो ये सप्लाई कर्व नहीं हुआ। तो क्या बोला मैंने, राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिव्स व्हाट, सप्लाई कर्व। समझा ये? यस और नो? पक्का? हाँ। अभी अब देखो ये है ना, इसी में बता देता हूँ क्योंकि तुम लोग काफी समझदारी का सबूत दे रहे हो, तो अच्छी बात है। ये देखो ये है ना, ये मेरा यूनिट था, तो इधर मेरी कॉस्ट थी इतनी थी है ना, मार्जिनल कॉस्ट वाज दिस मच, ये वाला समझा मैं नाम डायग्राम था। सी व्हेन द प्राइस वाज ओपी, तो इक्विलिब्रियम पे कितना आउटपुट था, ओएम है ना, तो मैं ओएम में सप्लाई कर रहा था। जब प्राइस ओआर हो गया तो मैं कितना सप्लाई करने लगा, ओएम। इसका मतलब क्या, ये क्या हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, सप्लाई का हो गया। हम नीचे भी एक लाइन ले सकते हैं कि भाई प्राइस कम हो गई तो सप्लाई इधर, सपोज इधर से एक लाइन ड्रॉप की है इसे मैंने, तो इधर आ जाएगा पॉइंट, तो इधर इक्विलिब्रियम आ जाएगा है ना, इधर कोई पॉइंट आ जाएगी, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे हम कि भाई प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो गई। तो ये राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिव्स सप्लाई कर्व। ये वाक्य आपको समझा? नहीं समझा तो वापस समझाओ, बोलो। ये लिखूं पूरा स्टोरी? हाँ तुम बोल सकते हो, जरा भी चिंता मत करो, कोई जल्दी लॉकडाउन खोलने वाला नहीं है। आराम से डाउट पूछ के एकदम अच्छी तरह नॉलेज ज्ञान प्राप्त करके देखो, मैं लिख के बताता हूँ। एक मिनट ना, equilibrium takes place when MC is equal to MR, है कि नहीं? पक्का? Now when price is OP, है ना, price is OP determined by total supply, determined by market supply and market demand। ये ओपी किसने डिसाइड किया भाई? हाँ, when price is OP, MC and MR curve meet at point A। समझा ये? दोनों लोग कहाँ मिलते? A पे। At this point क्या होगा? Equilibrium output is OM। पक्का? यहाँ समझा? जिनको नहीं समझा था अभी तक कृपया करके वो हाँ बोले या ना बोले। जिन्होंने नहीं समझा, अच्छा नहीं समझ किया यार, ऐसा मत लिखो, एक तो फास्ट पढ़ना होता है यार। अभी ऐसा मत, नहीं समझ गया ऐसा मत लिखो। आई डोंट राइट दिस, ऐसा बोलो कंफ्यूजन, नहीं समझ गया मतलब क्या, क्लियर लिखना, समझा? अच्छा चलो ठीक है, एक बात 2 मिनट में कर लेते हैं। व्हेन प्राइस राइजेस, ये लिख देने, लिखने की स्टाइल देखो, राइजेस टू व्हाट, ओ आर फ्रॉम ओपी ना, चले भी लिख देने का बढ़ाने के लिए ना, ओके। वी गेट a new AR and new MR curve। MC curve meets new MR curve at which point, तो बताएगा at point B, when at this point
good is ON, है ना? So it means what? It means when price rises, supply rises. Okay, therefore क्या होगा? Rising part of marginal cost curve is supply curve. आया समझ में? यस, ऑल ऑफ यू। अब है ना, दूसरा क्या बोला, कॉस्ट इंक्रीज होती है ना तो सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट। देखो, शोइंग डिक्रीज इन सप्लाई। मैं बताता हूँ क्या। देखो ये ना, ये कर्व था मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अभी ये यूनिट था ना, जो सपोज से ये ना कोई भी नंबर दे दो, तो बहुत सारे लैंड अच्छी तरह समझाने के लिए तुम लोग इतने हाथ में आएंगे हो, फिर अच्छी तरह समझाना। ये एक एक कर्व की कॉस्ट है कि नहीं? हाँ, तुम लोग को पता है कर्व का इंटीग्रेशन से बहुत लेना देना है। तुम लोग करते हो ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, तुम लोग को मार्जिनल कॉस्ट का होती है ना। ये देखो, ये एक एक यूनिट की कॉस्ट है ना। ये सपोज 5th यूनिट है, ये 6th है, हो गया इधर। ओके, हाँ, दिस इज 5th यूनिट, ये 6th यूनिट, 7th यूनिट। तो इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी ज्यादा कॉस्ट है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न चालू हो जाता है ना। अब है ना, सपोज ये कॉस्ट ज्यादा होने लगी, हर एक यूनिट में गवर्नमेंट ने टैक्स डाला या गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम किया तो ज्यादा कॉस्ट है। हाँ, तो अगर हम लोग ज्यादा कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा? इसकी ज्यादा कॉस्ट यहाँ से शुरू होगी और ये यहाँ से नया कॉस्ट कब आएगा ना, न्यू एमसी कर्व, है ना। ये क्या है? न्यू एमसी कर्व, उसका नीचे नाता टूट गया, कर देंगे। ओके, अब देखो इसकी कॉस्ट यहाँ थी, तो ये हायर कॉस्ट है न्यू एमसी कर्व शोइंग व्हाट, हायर कॉस्ट है कि नहीं? तो ये सप्लाई का वही हो गया, फिर वही सप्लाई का हो गया ना। ये सप्लाई का न्यू सप्लाई का हो जाएगा। मतलब इफ कॉस्ट इज इंक्रीज, इफ कॉस्ट इंक्रीजेस सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट शोइंग एमसी कर्व लेफ्ट में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, शोइंग डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये ओल्ड सप्लाई कर्व है, ओल्ड एमसी कर्व है, ये न्यू एमसी कर्व है ना, हायर कॉस्ट। समझा? ये दोनों सेंटेंस समझ में आए तुम लोग को? ये दोनों सेंटेंस, हाँ ये लिख दो। ये कोई बुक में एक्सप्लेनेशन वगैरह है नहीं, उन लोगों को assumption की शुरू से मालूम है। फिर तुम लोग ऐड करके भाई कैसे भी करके कल आके गाड़ी बढ़ाओ, है कि नहीं? यस और नो? बता दिया तुम लोगों ने यस? ओके, तुम लोग ब्रेक के कारण यस बोल रहे हो कि समझ में ऐसे यस बोल रहे हो? नहीं, ऐसा होता है लास्ट में, अभी मैं कोई नया कंसेप्ट शुरू करूंगा तो फटक समझ में आएगा। अब देखो, ये तुम लोग को मैं 2 मिनट बताया था क्या स्टोरी। ओके, क्या स्टोरी है अब सुनो। ये ना पूरा डायग्राम पढ़ने के, देखो उसमें क्वेश्चन क्या था, हाउ डू एक्सटर्नलिटी कॉज मार्केट इनएफिशिएंसीज। मार्केट इनएफिशिएंसी मतलब
आइदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन। ना सुनो, ये ना ये कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। क्या ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सप्लाई कर्व भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है। और ये है मार्जिनल बेनिफिट कर्व। क्या मार्जिनल बेनिफिट कर्व इज लाइक डिमांड कर्व। तो अब इसका है ना पूरा मैं एक एक स्टोरी बता दूं, सुनो। ये ना डायग्राम्स में इतने में एरोस नहीं बना सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी कोशिश देखो, है ना, ये यूनिट है। क्या ये यूनिट है, सपोज ये कोई यूनिट नंबर है, यहाँ पे कोई यूनिट है, यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ फाउंडेशन में था। हाँ अब सुनो, ये कर्व है। अब है ना, इसमें खर्चा कितना आ रहा है? इतना आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ से आगे इतना खर्चा आ रहा है, और कस्टमर को बेनिफिट कितनी मिल रही है? इतनी सारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेनिफिट है ना इसको। फिर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो बेनिफिट कम होती जाएगी। सी दिस इज मार्जिनल बेनिफिट कर्व, बेनिफिट डिराइव्ड बाय द कस्टमर। जैसे हमने एक पॉइंट ली यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट ली, अब है ना यहाँ पे एक पॉइंट ली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉस्ट है कंज्यूमर, किसको कॉस्ट? दिस इज द कॉस्ट टू हुम, मार्जिनल कॉस्ट टू द प्राइवेट प्रोड्यूसर। एंड कंज्यूमर को कितनी बेनिफिट मिल रही है? इतनी। तो चीज खरीद होगी कि नहीं यार? यार कॉस्ट इतनी कम है और बेनिफिट इतनी ज्यादा है, तो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा? और आगे भी बिकेगा, और भी बिकेगा। और एक यूनिट करेंगे तो क्या होगा, है ना? यहाँ पर देखो, अब ये Q2 पे देखो, दिस मच इज प्राइवेट कॉस्ट, व्हाट दिस मच, एंड बेनिफिट इज दिस मच। हम लोग ये कर्व ले रहे हैं, कॉस्ट कर्व ये ले रहे हैं, और बेनिफिट यहाँ ले रहे हैं, ये वाला। तो एट Q2 दिस मच, ओनली दिस मच इज द कॉस्ट Q2 टू दिस पॉइंट, है ना, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व। लेकिन बेनिफिट क्या है? Q2 से लेकर यहाँ तक का फायदा है कस्टमर को, तो डेफिनेटली देयर इज अ सरप्लस। ये इतना खर्चा है प्राइवेट प्रोड्यूसर को, और कस्टमर बोलते हैं मुझे तो इतना P2 तक की मजा आ गई है, अच्छी बात है। फिर है ना, ऐसे करते करते ये नीचे ऐसे से आगे जाएंगे, जैसे से आगे जाएंगे तो बेनिफिट कम होती जा रही है और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसे देखो, ये गैप यहाँ पे हम रुकेंगे, तो दिस मच इज द कॉस्ट, एंड यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तुम लोग को फाउंडेशन में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व से बताया गया था, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व इज डिमांड कर्व, आई नो इट, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना पूरा। तो अब है ना, यहाँ पे रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा कहाँ पे? एंड सोसाइटी विल प्रोड्यूस हाउ मच? Q1 goods. The society is considered only what? Private benefits and private cost. क्या कंसीडर किया गया इसमें भाई? You have considered only private benefit and private cost, isn't it? हाँ कि नहीं? लेकिन अगर तुम लोग सचमुच की कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट तो यही है, अगर समाज की सब कॉस्ट कंसिडर की होती तो वी कुड हैव गॉट मार्जिनल कॉस्ट दिस कर्व ना, सोशल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की होती थी, और इन दोनों के बीच में कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज है ना। अगर हम एक्सटर्नलिटीज भी करते तो ये हमारा सप्लाई का होता, ये हमारा कॉस्ट का होता। जैसे मैंने बताया था, ये देखो कॉस्ट बढ़ती तो नया सप्लाई का आ जाता है ना। तो अगर हम हायर कॉस्ट गिने, सोसाइटी का खर्चा गिने, तो फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ कॉस्ट कर्व, एंड फ्रॉम प्राइवेट प्रोड्यूसर दिस इज अ कॉस्ट कर्व। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होता? Q2 पे हो जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंसिडर करते हैं तो देयर इज ओवर प्रोडक्शन, वी प्रोड्यूस Q1, है ना, Q1 प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वी कंसिडर ओनली marginal private cost and marginal private benefit. But if I consider social cost as cost of production, तो फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाते थे, Q2 पे रुक जाते थे, आगे जाना महंगा पड़ता। तो तुम लोग Q2 पे रुक जाते थे, लेकिन तुम लोग यहाँ गए ना, तो ये तुम लोग ने जो ट्रेडेड एरिया है ना, वो तुम लोग ने बेनिफिट गवा दी सोसाइटी की। लेकिन हम लोग ये कंसिडर करते हैं, है ना, जैसे हम सिगरेट्स बांटते हैं तो हम सिगरेट से प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट देखते हैं। समाज को कितना नुकसान होता है सिगरेट से, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो हम नहीं करते, हम बोलते हैं कि जाने दे, समाज को होता है नुकसान, होने दे। पालक भी हम खाते हैं तो बोलते होने दे समाज को नुकसान। ओके, तो ये सब चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। फॉलो दिस। सो द एंड ईयर आया समझ में? हाँ, अभी एक क्वेश्चन बाकी है पूरा पढ़ना ये, लेकिन बेसिक्स मालूम होनी चाहिए कि क्या है एक्सटर्नलिटीज, होते क्या है ना, व्हाट आर द एक्सटर्नलिटीज। आया समझ में इको का लेक्चर? हाँ,